धन्यवाद भाई साहब। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे यहाँ इस योग्य समझा गया कि मैं शेयर करूं। तो सबसे पहले हम इनवाइट हमारे सेशन में 6 लोग हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी मनाली गंधार नेवास्कर जी को, जिनका नमस्कार. हाँ मिस्ट्री ऑफ सीता रिवीलिंग हर पास्ट एंड डिवाइन पर्पस। आप हैं मनाली जी? Yes, yes. हाँ Am प्लीज। I audible? या आप अपना पहले नंबर बताएं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। R7183. 183। ओके, आप स्टार्ट करें प्लीज। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, I am sharing my screen. Please wait. या I think it's visible, right? या Mrs. Manali Gandhar Nevaskar, paper number R7183. Mystery of Sita revealing her past and divine purpose. Srimad Valmiki Ramayana is foundational text in Hindu tradition which imparts significance to society in terms of relationship, leadership, service, devotion, purity, ethical integrity, and moral excellence. So it is said that Kavyam Ramayanam Krusnam Sita Yash Charitam Mahat Paulatsavadamitte Chakara Charita Vrataha, which means Valmiki himself introduced Ramayana as the life story of Sita, and another name Paulatsavad, the slaying of Ravan. This can be also interpreted as Sita's role in destruction of Ravana is so significant. Sita, the central figure of Ramayana epic, also known for her devoted life. She is symbol of purity, selflessness, gentleness, but her divine purpose of life, power, are still neglected. She is Ayonija and her birth is enigmatic too. The present paper sheds light on mystery of Sita, revealing her past life to understand her significant role in death of Ravan and life purpose. Uttarkand of Ramayana is deeply enigmatic, where past lives of Rakshasa are told by Agastya Muni. Sri Ram himself urged sage Agastya as he became more curious about history of Ravana's birth and power of Indrajita. So in Sarga 17 of Uttarkanda, story of Sita's past life as Vedavati is mentioned. We all worship Devi Sita as goddess Lakshmi only. She is Shakti of Lord Vishnu, wife of Sri Ram. But the connection of goddess Lakshmi, Vedavati and Sita is lacking. And this creates ambiguity about Sita's origin. So the purpose of present paper is to clarify Sita's past life, its connection with goddess Lakshmi, and illuminate her sacred task in annihilation of Ravan. Mystery of birth of Sita. As we all know, Sita is called as Bhumi Kanya, daughter of Mother Earth. Sarga 70 says that Kanyam Kamalagarbhabham Pragruhyas Svagruhanyayo, which means Sita first took birth in lotus. She has glory as lotus. She is Kamala Padmini, which are also name of Sri Lakshmi. We say Padme Sthitam Padma Varnan Tamiho Bhavaya Shriyam as in Sri Sukta, which were the names of goddess Lakshmi. Similarly, Sita emerged from lotus as Ayonija, as incarnation of goddess Lakshmi. The story here is Sita first emerged from lotus and then Ravana, amazed by her beauty, he carried her to Lanka. Then after suggestion of his mantri that she will be the reason for your destruction, Ravana, so kill him. So Ravana thrown her in ocean, but by her yogic powers she traveled through Nagaloka and then came to the land of Janaka's Yakyabhumi, and that is why called as Bhumi Kanya. This clearly reveals that Sita had already provided the clue to Ravan that she was born and will be reason of his death. It was possible that she would have directly emerged from lotus near to the Yagyabhumi of Raja Janak, but that was not the case. She went to Ravana's home just after her birth, just as Kamsa was warned about his death from Akashvani. She created the fear among Ravan and his minister right after her birth. So, if Sri Rama took birth for killing Ravana, the Karya, the reason that is goddess Lakshmi incarnates as Devi Sita for Ravana's destruction. So, in Sarga 17 comes the Vedavati.
So Sita's past life was mentioned as Vedavati, who was daughter of Kushatvaja. Kushatvaja decided to give her daughter to Vishnu. Once Daityaraj Shambhu came for asking Kushadvaja to give her daughter, but he refused. So Daityaraj Shambhu killed Kushadvaja, and Malavati also left her body with husband's death. Now Vedavati started doing penance for Vishnu in forest, and Ravana looked at her. He got attracted towards her, and Vedavati obviously denied to go with Ravana and sang the glory of Narayan. So that is why Ravana became so angry and grabbed her hair. By her power, she cut the hair and cursed Ravana that I will be the reason for your death, and then merged with Agni with yogic powers. And she also said, if I kill you by my penance, it will be wasted and I won't be able to marry Narayana in next birth. So, one reason for that, like, Ravana's devotion towards Shiva was so immense that his punya has to be first destroyed. So Prakriti herself decided to destroy his punya first. That might be the second reason why Vedavati did not curse him and ended his life at that point. So, to understand Vedavati's origin, we have to look into the Srimad Devi Bhagavat Mahapurana. In ninth skanda, the story of Kushadvaja was mentioned. So, Kushadvaja was actually grandson of Rushadvaja. Rushadvaja was an orthodox devotee of Lord Shiva and he hated Narayana. He said insulting word for Narayana, that's why Aditya Narayana cursed him and said that you will die as Shrihina. So Rushadvaja died as Shrihina. Then his son Rathatvaja also died as Shrihina. And Rathatvaja has two sons. One Dharmadvaja and one is Kushadvaja. Both were devotees of Vishnu and they want Lakshmi back into their lineage. So Malavati and Kushadvaja were doing penance and Lakshmi gave boon to Malavati. What she said that Kushatvajasya patni cha devi Malavati sati sa sushavacha kalena kamalamsham sutam satim, which means I will born as your daughter. I will born as your daughter Kamalamsham Sutam Satim. So baby began to sing all Vedic richa clearly just after birth and hence named as Vedavati. And then Akashvani said that she will get Sri Hari as husband in the next birth. That is why Kushadvaja decided to give his daughter to Vishnu only. And Agastya Muni in 17th Sarga told Sri Rama, तव भार्या महाबाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः पूर्वं क्रोधहतः शत्रु यया सौ निहतस्तथा, which means Vedavati reincarnate as your wife Sita, and Vedavati already had killed Ravana by her curse. So after that you actually killed him in war. First goddess Lakshmi incarnated as Vedavati in Satyuga and next as Sita for destruction of Ravan. This clearly mentions that destruction of Ravan was the divine purpose of Sita's life. Conclusion. In Ajnana Dasha, we consider Sita as a human figure whose life was full of sorrow. After deep thinking about Sita's glory, we actually found that it is her Leela for killing Ravan. Sita is Padmaja, the one who born on lotus, went to Lanka and later found by Raja Janak. She is the foremost reason, that is Karana, of Ravana's annihilation and whole Ramayana. But none is her Karan, that is, she is devoid of any Karanam. By this way, mystery of Sita's truth, her past life, her divine purpose, and immense power are clarified in this paper. I would like to thank my family for supporting me, Dr. Bhavna Balte ma'am, and thanks to Sri Ramacharit Bhavan, Tulsi Manas Pratishthan, and Ramayana Kendra for giving me this opportunity. Shri थैंक यू मनाली जी, आपने बहुत सही समय में अपना पेपर खत्म किया। अब हम इनवाइट करेंगे
श्री मृणाल श्रीवास्तव को, जिनका सब्जेक्ट है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सोना ऑफ सीता इन अमीश त्रिपाठीज सीता द वारियर ऑफ मिथिला। सो श्री मृणाल श्रीवास्तव। she may not be able to, he or she may not be able to present this, वो नहीं है इस वक्त यहाँ पर। वो नहीं है अभी? नहीं। तो फिर नेक्स्ट को बुला लेते हैं। आशा राठौर जी, राम कथा में सीता तृणधर ओट के विशेष संदर्भ में। आशा राठौर जी, कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें, शोध पत्र। जी आशा राठौर जी। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। आ रही है। नमस्कार, सभी को प्रणाम। ये सुखद अवसर पुनः एक बार प्राप्त हो रहा है, सभी को ऑनलाइन ही देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जो विषय है वो है सीता तृणधरी ओट उपन्यास के विशेष संदर्भ में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैडम। अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए प्लीज। मेरा 200 है मैडम, R7। 200। जी जी मैडम, क्या शेयर हो पा रही है स्क्रीन? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप म्यूट पे हैं आशा जी। जी आ रहा है आपका। जी आशा राठौर जी, आप म्यूट हैं। मैडम अब आ रही है आवाज? मैडम सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं। आप कृपया अपनी बात शुरू करें। अब हाँ, बस शुरू। मेरा जो विषय है वो है राम कथा में सीता तृणधरी ओट के विशेष संदर्भ में। यह जो मैंने विषय लिया है ये वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित साहित्यकार है, महिला साहित्यकार आदरणीय अनामिका जी, जिनका ये उपन्यास है। और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उन्हें उनका पुनर्अवलोकन या पुनर्पाठ करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो सीता को कुछ अलग ही संदर्भों में यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, परंतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में सीता जी यहाँ पर उभर के आती है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारा उपन्यास उनका हमें दिखाई देता है। तो कुछ इसके खंड है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो उपन्यास है उसका प्रथम पृष्ठ है पुस्तक का, और इसमें 3 खंडों में अनामिका जी ने इस उपन्यास को विभक्त किया है। पहला खंड इसमें गुप्त पत्राचार है, दूसरा खंड हम यहाँ पर देखें सीतायन कुछ क्षण चित्र है, तीसरे खंड में यहाँ पर उत्तरायण। इस तरह से इन 3 खंडों में ये पूरा उपन्यास विभक्त है और लगभग 200 के ऊपर इसमें जो पेज है वो इसमें दिए हुए हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति को रूपाकार और आधार प्रदान करने में जिस पुराख्यान का सर्वाधिक महत्व हम देखते हैं वो हमारी राम कथा है। इसमें भी मैं, अगर चूंकि समय हमारे पास सीमित है इसलिए मैं इसे संक्षिप्त ही करूंगी। राम कथा की प्रमुख नारी पात्र सीता को लेकर भी विपुल साहित्य लिखा जा चुका है। प्रस्तुत शोध पत्र में हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका अनामिका के उपन्यास तृणधरी ओट के संदर्भ में सीता चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। इसका जो विषय विस्तार है उस पर अगर हम बात करें तो एक स्त्री का अपनी खुदी तक पहुंचने का जो लंबा सफर, कठिन संघर्ष में सफर को दर्शाने वाला यह उपन्यास है। तृणधरी ओट इस उपन्यास में वह स्त्री है सीता। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस में राम प्रमुख पात्र के रूप में चित्रित है। सीता को आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श बहू आदि विविध रूपों में दिखाया गया है। यद्यपि तृणधरी ओट में सीता अपने आदर्श रूप में ही है, तथापि उपन्यास में प्रमुख पात्र बनकर वे यहाँ उभरती है। सीता के इर्द गिर्द संपूर्ण उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। जीवन के कठोर धरातल पर चलते चलते, संघर्ष के झंझावातों को झेलते हुए, काल के निर्मम प्रहारों को सहन करते हुए, अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हुए अपने सत्व बोध तक पहुंचने वाली सीता की जीवन यात्रा को दर्शाने वाला ये उपन्यास है।
उपन्यास का शीर्षक रामचरितमानस की जो चौपाई है, तृणधरी ओट कहती वैदेही सुमरी अवधपति परम सनेही से लिया गया है। उपन्यास के प्रथम खंड में कुछ मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं जो संपूर्ण मानव समाज को सोचने पर विवश कर देते हैं। आख्यान जितना पौराणिक है उतना ही प्रासंगिक भी है। प्रथम खंड गुप्त पत्राचार का प्रारंभ वाल्मीकि जी की जो कुटिया है वहां से अर्धरात्रि में सीता द्वारा राम को लिखे गए पत्र द्वारा इस उपन्यास का शुभारंभ होता है। इस पत्र में सीता न जाने कितने ही उच्च मनोभावों की शिखरों को स्पर्श करती हुई हमें दिखाई देती है। वे लिखती है, ऋषि की कुटिया निदाद दग्ध प्राणियों के लिए बड़ी छाह है। लवकुश को राम को सौंपती है। एक स्वाभिमानी पुत्री के रूप में बाबा जनक के साथ जाने से मना कर देती है। बाबा जनक से कहती है, बाबा मैं विदेह की बेटी, देह तो वही आग में बार आती, बेशक वह जली नहीं, क्योंकि वह आपकी यश काया थी। बेटी की देह बाप की यश काया ही होती है। वह तो जस की तस दमकती रही, पर मेरा ही उससे जी भर गया। स्त्री देह संबंधी विचार, राम के प्रति एक निष्ठ प्रेम, वात्सल्य भाव आदि सभी कुछ इस पत्र में हमें दिखाई देते हैं। वे जनक से कहती है, राम के प्रेम ने मुझ में यह महाभाव जगाया है कि सामिप्य आत्मिक होता है, भौतिक नहीं। मैं आपकी बेटी, विदेह की बेटी, इस बात का मर्म ना समझ पाती तो भला कौन समझ पाता। वे राम को लिखती है कि हनुमान के सिवाय हमारे इस गुप्त पत्राचार के विषय में मैंने किसी को भी नहीं बताया है, सिर्फ लवकुश को इस विषय में मैंने जानकारी दी है, सूचित किया है उन्हें। उत्तर में राम भी उन्हें अपना संदेश भेजते हैं। मर्यादाओं के बंधन में बंधे राम सिया के बिना ही राजकाज संभाल रहे। राम हमेशा मर्यादाओं के बंधन में बंधे रहते हैं। उन बंधनों से उन्हें जीवन पर्यंत मुक्ति नहीं मिलती है और इन बंधनों के कारण ही उन्हें अपने जो व्यक्तिगत सुख है वो सारे निछावर करने पड़ते हैं। एक पत्र वे लवकुश को भी लिखती है, जो अब पिता राम के साथ अयोध्या में 7 माह से निवासरत है। लवकुश की बचपन की स्मृतियां उनके हृदय प्रदेश को हरा भरा बनाए रखती हैं। वे उन्हें बताती है, वन की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया है। तरह तरह के पेड़ों पशु पक्षियों से मिलते बतियाते दिन कट जाता है, पता ही नहीं चलता। संपूर्ण उपन्यास में सीता एक प्रबुद्ध, शस्त्र शास्त्र नीति दर्शन में पारंगत, कर्तव्य परायण, ममत्व से परिपूर्ण, अपने स्वत्व बोध तक पहुंची प्रज्ञावान तर्कशील नारी के रूप में चित्रित है। वे प्रेम की, विश्व बंधुता की, सभी के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार की, हिंसा के विरोध की, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति की महत्ता, पर्यावरण संरक्षण, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था आदि अनेक ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात प्रस्तुत करती है। उनका मानना है कि हिंसा की समस्या का समाधान प्रतिहिंसा नहीं है, बल्कि प्रेम, सहयोग, सहकारिता से ही इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। अनामिका जी ने उपन्यास में सीता के चरित्र के माध्यम से मानव जाति की बहुत सारी समस्याओं का हल खोजने का यहाँ पर प्रयास किया है। सीता के चरित्र की कुछ विशेषताएं अगर हम बात करें तो वे शास्त्रों की ज्ञाता है। मिथिलांचल में स्त्रियां भी शास्त्रों का ज्ञान रखती थी और शास्त्रार्थ में निपुण हुआ करती थी। सुनैना चाहती है कि उनकी बेटियां भी शास्त्रज्ञ बने। सीता कहती है, माँ ने मेरे और उर्मिला के सामने हरदम गार्गी मौसी का आदर्श रखा। शास्त्र शस्त्र दोनों में पारंगत रहे उनकी बेटियां, ऐसा उनका सपना था। हर शास्त्रार्थ में स्वयं भी बैठती, हिस्सा लेती और जो बात मेरी और उर्मिला की समझ में नहीं आती किस्से कहानियों में उनको सरलीकृत करके उनका भावार्थ हमें घुट्टियों में पिलाया करती थी। इस तरह के कई प्रसंग हमें उपन्यास में मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सीता जी शास्त्रों की बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी ज्ञाता थी। नीति और दर्शन का भी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण गहरा ज्ञान है। सिया का चरित्र कोई सामान्य नारी का चरित्र नहीं है। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता वह तेजस्वी चरित्र है जो अपनी संकल्प शक्ति से एक नन्हे से तिनके को ओट बनाकर अपने सतीत्व की रक्षा अकेले ही करने में समर्थ है। लवकुश के विषय में वे अपने संघर्षमय जीवन में हर कदम पर वे नीति का ध्यान रखती है। उपन्यास में कई स्थल हमें ऐसे मिलते हैं जहां सीता के शब्द नीति की सुक्तियां मानो हमें प्रतीत होते हैं। इस तरह के शब्द हमें सीता जी के कई स्थलों पर देखने को मिलते हैं। नीति दर्शन के पश्चात अगर हम बात करें तो वात्सल्य और करुणा की वे प्रतिमूर्ति है। सीता के में ममत्व भाव कूट कूट कर भरा है। उनका ये वात्सल्य भाव सिर्फ लवकुश के प्रति नहीं, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है। उनका ये जो वात्सल्य भाव है सिर्फ अपने बच्चों के प्रति ही नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव समाज के प्रति,
आदिवासी समुदाय के प्रति, क्योंकि वो वाल्मीकि की कुटिया में जब तक रहती है तो आदिवासी समाज के ही संपर्क में रहती है, और उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान आदिवासी समाज का उनके बच्चों के पालन पोषण में होता है, इसलिए आदिवासी समुदाय के प्रति भी गहरा ममत्व सीता के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक कि राक्षस समुदाय के प्रति भी ममत्व का भाव उनके भीतर है। ये बहुत ही इस उपन्यास में कुछ अलग हटकर दिया है कि राक्षसों के जो बच्चे हैं, जब वो अशोक वाटिका में रहती है तो वहां चारों तरफ से राक्षसों से घिरी रहती है, तो उनके भी जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनके प्रति भी एक वात्सल्य का भाव सीता के हृदय में हमेशा रहता है। जिस तरह वे धरती माँ बिना किसी भेदभाव के सभी का पालन पोषण करती है, उनकी पुत्री सीता भी अपने जीवन काल में उनके ही गुणों का अनुसरण करती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। वे लव कुश से कहती है, यह मेरे प्रस्थान की बेला है, पर जैसा पहले कहा मैं फिर लौटूंगी तुम्हारी पुकार पर। सपने में जागरण में माँ कहीं जाती नहीं, जाकर आती है। जब वो पृथ्वी में समा रही थी तब अपने बच्चों को लव कुश को इस तरह से भी सांत्वना देती कि माँ कहीं जाती नहीं, जाकर आती। तुम जब भी पुकारोगे मुझे स्वप्न में, तब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगी। युद्ध एवं हिंसा की वे परम विरोधी है। ये जो बिंदु है वो राम से हटकर सीता अपना स्वत्व स्थापित करती है, और उनकी जो विचारधारा है राम से कुछ अलग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। युद्ध और हिंसा की भी विरोधी है। वे कहती है, वैसे तो मेरे भीतर की लक्ष्मी ठगी जाने को अभिशप्त थी, पर मैंने यह नहीं कहा था कि हिरण पकड़ने में न आए तो उन्हें मार ही डालो। परिहार्य हिंसा के विरुद्ध तो मैं लगातार ही रही थी। कोई जीव पकड़ में ना आए तो अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार कर लेनी चाहिए, यह भी एक लीला ही है। इस तरह से कई प्रसंग सत शिक्षा की वे प्रबल पक्षधर है। सभी संस्कृतियों के संरक्षण के वे पक्षधर है। बाबा शंबुक नामक अध्याय में वे कहती हैं, बाबा शंबुक का मानना है कि हर संस्कृति के पास कुछ ना कुछ सीखने लायक होता ही है। एक नई जीवन दृष्टि, एक नई ज्ञान परंपरा, एक विशेष प्रज्ञा कोश, एक दूसरे से सीखते हुए जो पारस्परिकता विकसित होती है, उसी से जीवन प्रेममय और सृजनात्मक बनता है। यहाँ तक कि जो राक्षस प्रजाति थी उनकी संस्कृति में भी कुछ ऐसे तत्व थे जो आर्य संस्कृति को सीखने के योग्य थे। इस तरह के विचार यहाँ पर सीता अपने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार तृणभरी ओट उपन्यास में अनामिका जी ने सीता को एक स्वतंत्र, प्रज्ञावान, शस्त्र शास्त्र में पारंगत, तर्कशील, करुणा, प्रेम, वात्सल्य से परिपूर्ण, धैर्यवान, यहाँ तक कि औषधियों का भी उन्हें ज्ञान था, इस बात की भी हमें यहाँ पुष्टि मिलती है। प्रकृति प्रेमी, हिंसा वृत्ति की प्रबल पक्षधर आदि विभिन्न रूपों में घटनाक्रम के माध्यम से यहाँ चित्रित किया गया है। एक इनकी जो उपन्यास में अंतिम जो कुछ पंक्तियां आती है, मैं यहाँ उन्हें जरूर उद्धृत करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो स्त्री विमर्श या हम कहें कि स्त्रियों का जो वर्तमान समय में सत्वों को जानने की जो प्रक्रिया है, इसमें देखिए कितने सुंदर शब्द यहाँ पर सीता जी ने। रावण अंत में सीता जी के पास पुनः आता है और उस समय रावण से वे कहती हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे इसमें भी, राम की अब दुनिया अलग है। पुनश्च रावण से मेरी अंतिम मुलाकात के विवरण सीता लिखती है। रावण कहता है, नमस्कार देवी, राम की अब तो दुनिया अलग है, लव कुश की भी पूरी हुई जिम्मेदारी। रावण कहता है, अब तो हम दोनों ही उम्र के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां प्रेम देह की कछार छोड़कर हो जाता है एक मीठी आपसदारी। बहुत भटक कर फिर से आया हूं द्वार तुम्हारे। रावण कहता है अंत में कि बहुत भटक कर आया हूं फिर से द्वार तुम्हारे, क्या तुम मुझे रुद्रवीणा सिखाओगी? सीता जी कहती है, मैं कोई किसी और की रुद्रवीणा कैसे बजाए भला? जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक, उससे भी ज्यादा भटक कर मैं आई हूं वापस अपनी खुदी तक। यह रुद्रवीणा ही है अब तो मेरा वजूद। खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद रुद्रवीणा गढ़ो, जो भी लय ताल सिखानी होगी प्रकृति खुद ही सिखा देगी। जाओ हे भिक्षु प्रवर, इस बार लौटा रही हूं पहचान कर मर्म जीवन का। आघात ही मुक्ति का मार्ग है बंधु, इससे ही जागते हैं वीणा में राग। खुद अपनी रागिनी सुनो और लौटो अपनी खुदी तक। तुम विराग के और रागों के भी सर्वथा योग्य हो, गायक हो महाशून्य का, शून्य से शून्य घटा शून्य बचा। इस तरह से इन पंक्तियों में
सीता ने बहुत गहरी और गंभीर बातें अंत में रावण से कही है। इस तरह से ये पूरा शोध पत्र जो है वो पुस्तक में आपको प्राप्त होगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद आशा जी। अब हम बुलाना चाहेंगे विनीता मिश्रा जी को, जिनका विषय है नेतृत्व में अग्रणी सही सीता, नेत्री सीता। आदरणीय विनीता मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, और सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। रामचरित भवन को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना शोध पत्र नेतृत्व में अग्रणी सीता, नेत्री सीता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपना नंबर बता दीजिए प्लीज, रजिस्ट्रेशन नंबर। 206 है शायद। आशा जी ये स्क्रीन, हाँ जी बस वो स्क्रीन नहीं आती थी हमें। आरंभ करें आशा जी? आ गया जी, जरूर, स्वागत है। धन्यवाद। नेतृत्व में अग्रणी सीता, नेत्री सीता, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। मनु महाराज पत्नी शत्रुपा के साथ जीवन के चौथे आश्रम में आकर नैमिषारण्य में कठोर तप कर भगवान का दर्शन पाते हैं और उन्हें ही पुत्र रूप में मांग बैठते हैं। भगवान देवी भगवती सीता के साथ प्रकट होते हैं। मनु महाराज केवल पुत्र रूप में भगवान को चाहते हैं, किंतु भगवान वरदान देते हुए कहते हैं, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। यह गूढ़ बात है जो भगवान के द्वारा कही गई। भगवान का प्राकट्य हुआ, सबने जाना, आनंद मनाया, किंतु सीता के प्राकट्य को कोई जान नहीं पाया। आज तक कयास लगाए जा रहे हैं सीता प्राकट्य से पहले धरती के भीतर कहां से आई। उसे पाने की इच्छा तो किसी ने नहीं की, पर जब वो प्रकट हुई तो हर कोई उसे ही पाना चाहता है, क्योंकि जिसका परिचय स्वयं भगवान ने शक्ति के रूप में करवाया हो, उसे पाने को ही तो संसार आज तक बावला है। सीता आदि शक्ति है और प्रकृति के रूप में प्रकट होने के बाद वही श्री है, वही समृद्धि है, वही संपत्ति है, वही शक्ति है, वही अग्नि है और वही आहुति है। राम दशरथ को मिले कठिन तप और लंबी प्रतीक्षा के पश्चात, किंतु विदेहराज को धरती में हल चलाने भर से सीता स्वयं मिल गई। राम यज्ञ की परिणति है तो सीता कर्म की परिणति है। दशरथ के पुत्र प्रेम में मोह है, जनक के पुत्री प्रेम में त्याग और वैराग्य का गुण है। वो जैसे पाते हैं वैसे ही जिसकी है उसे सौंप भी देते हैं। दशरथ को राम उनके कठिन तप से मिलते हैं, पर उनके लिए सीता को लेकर स्वयं राम आते हैं। मोह के कारण जब राम छूटने लगते हैं तब दशरथ को बोध होता है और वो सीता को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु राम द्वारा लाई गई सीता राम के साथ ही चली जाती है। साथ ही चले जाते हैं दशरथ के प्राण, जबकि जनक पहले से ही विदेह हैं, सीता को पाकर भी विदेह हैं और उसे भेज कर भी, यहाँ तक कि उसे वन में देख कर भी विदेह ही हैं। कोई मोह, कोई पश्चाताप, कोई गिला शिकवा नहीं। सीता केवल ऐसे लोगों तक स्वयं पहुंचती है जिसके पास जाना है, कहाँ रहना है, यह सीता स्वयं निश्चित करती है और यही है नेतृत्व का आधारभूत गुण। फुलवारी में और सीता स्वयंवर में सीता की भूमिका। सीता स्वयंवर है और सीता किसे वरना चाहती है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। शिव धनुष की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जनक नंदिनी पुत्री की सारी मर्यादाएं निभाते हुए, अपने पितृकुल की परंपरा का पालन करते हुए माँ गौरी से अपने इच्छित वर को बिना कहे बताती है। शिव धनुष की प्रतिज्ञा पूरी कर सीता स्वयंवर की सफलता शिव से पहले माता पार्वती के पास पहुंच जाती है। माता पार्वती चाहे और शंकर उस शिव धनुष का भार न हर ले, यह तो भव के लिए भी संभव नहीं। आखिर इस सृष्टि को रचने चलाने का कार्य शक्ति द्वारा ही तो संपन्न हो रहा है। बड़ा ही रोचक और विनोदपूर्ण प्रसंग लगता है ये मुझे, और सीधे सीधे सशक्त नारी का सशक्त उदाहरण। कहने को शंकर का धनुष, तोड़ने वाले राम, पर इच्छा सीता की पूर्ण हो रही है और पूर्ण करवा रही है जगदम्बा भवानी माँ गौरी। क्या ही अद्भुत अलौकिक गठबंधन है माता सीता और माता पार्वती का। इतनी दृढ़ता, सामर्थ्य, शक्ति जिसमें हो, असली नेत्री तो वही है। राम के लिए सीता की सहमति। राम विश्वामित्र के कहने से मिथिला आते हैं
उनके ही कहने से धनुष धनुष की ओर बढ़ते हैं। राम के लिए न ये वीरता का प्रदर्शन है, न किसी प्रकार की उपलब्धि, सर्वोपरि है सीता की इच्छा। इसलिए धनुष की ओर बढ़ने से पहले राम ने सीता की ओर देखा तो सीता की को अपनी ओर देखते पाया। सीता के मन के भाव ने और सीता की महाशक्ति के बल ने राम से धनुष तुड़वाया। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। नेत्री होने का ये अर्थ कदापि नहीं कि स्त्री लज्जाशील संकोच त्याग दे। इनको धारण करते हुए भी शक्ति संपन्न और समर्थ हुआ जा सकता है। ये बात सीता के चरित्र को देखते हुए समझ आती है। सीता कोमलांगी है, मृदुल स्वभाव वाली है, साथ ही दृढ़ इतनी कि राम ने जब पंचवटी में उससे अग्नि में वास करने की बात कही तो शत्रु के किले में अकेली जाकर अग्नि में ही तो वास किया। एक ऐसी अग्नि जो सीता के लिए तत्काल से लेकर भविष्य तक के लिए अग्नि परीक्षा बन गई। वो इस परीक्षा में सदा खरी उतरी, चाहे परीक्षा देकर या नकार कर। जगत कल्याण के लिए अपने कर्तव्य को निभाने में ऐसी परीक्षा का सामना और ऐसे बलिदान कोई नेत्री ही कर सकती है, अनुगामिनी नहीं। दशरथ को राम कठिन तप और फिर यज्ञ के द्वारा प्राप्त होते हैं। उनके माता पिता उन्हें पुत्र रूप में चाहते हैं, चुनते हैं और मांगते हैं, जबकि सीता धरती से अकेली असहाय प्रकट होती है और अपने माता पिता स्वयं चुनती है। सीता पिता भी चुनती है और पति भी। सीता का चरित्र इतना आत्मनिर्भर और दृढ़ है कि वो सेवा निष्ठा में दृढ़ है तो कार्य पूर्ण करवाने में भी निडर और दृढ़ है। वो मिथिला से अयोध्या आने में सक्षम है, अयोध्या से वन जाने में सक्षम है और तो और वन से लंका जाने में भी नहीं हिचकती। राम उसे लंका रूपी अग्नि में प्रवेश करने को कहते हैं तो स्वयं अग्निबन लंका पहुंच जाती है। जब लोग किसी अभियान के लिए निकलते हैं तो सबसे आगे अग्नि की मशाल ही तो चलती है। सीता वही मशाल है जो राम के लिए मार्ग प्रशस्त करती है और रावण के लिए लंका का दहन। हनुमान के आने पर हनुमान को माध्यम बना लंका को अग्नि के हवाले कर देती है। राक्षसियों को लगता है कि सीता तो एक अंगार के लिए तरस रही है, ये तो किसी और का काम है, जबकि सीता रामदूत के माध्यम से राम की प्रतिष्ठा का निर्माण कर रही है। ये बात जामवंत और हनुमान के संवादों से भी स्पष्ट होती है। राम के सुयश का आधार सीता ही तो है। सीता अग्रता न होती तो राम का यश संसार के सामने कैसे आता। राम के आने से पूर्व ही राम का भय सारी लंका के मन में भर देती है। डरी हुई जनता और सेना तो पहले ही पराजित है। पराजित सेना का संहार करना कोई कठिन काम नहीं। 14 वर्ष के वनवास में 13 वर्ष उसने राम का अनुगमन किया, किंतु फिर वो अग्रणी होकर लंका में पहुंची और राम ने उसका अनुगमन किया और सीता के बाद लंका पहुंचे। सीता अग्रणी है, नेतृत्व करने वाली है, नेत्री है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। सीता वो अग्नि है जो आज तक रावण के प्रतीक को जला रही है। राम के बाण तो प्रतीक भर हैं, उन बाणों की अग्नि सीता ही है। सीता सुख है, शांति है, संपत्ति है, समृद्धि है, भक्ति है और शक्ति है। सब उसे अपनी अपनी भावना अनुसार पाना चाहते हैं। अगर हम उसे भक्ति के नाते मांगे तो सीता भी मिलेगी और राम भी। पर रावण तो सर्वशक्तिशाली मानता है स्वयं को और ईश्वर के समकक्ष होना चाहता है शक्ति के सहारे से। इसलिए सीता को हर लाया कि जिसके पास शक्ति वही सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान वही ईश्वर, वही भगवान। मनुष्य को भगवान होने की लालसा ही तो फंसा रही है, किंतु रावण नहीं जानता कि सीता रूपी शक्ति का वरण किया जाता है, हरण नहीं। जो वरण कर सकता है वही शक्ति को धारण कर सकता है, वही ईश्वर हो सकता है, वही भगवान हो सकता है, या कहें कि जो ईश्वर है शक्ति उसी की है। इसी शक्ति को पाने के लिए सब प्रयासरत हैं। जनकपुरी के धनुष यज्ञ में आयोजन में सारे राजा, अयोध्या में राम के वनवास के समय राजा दशरथ, दंडकारण्य में शक्तिशाली राक्षस से लेकर रावण तक, पर शक्ति स्वरूपा सीता केवल राम की और भक्ति स्वरूपा सीता सारे संसार की। भक्ति के रूप में उसकी इच्छा की जाए तो लाख रुकावटें आए, हनुमान की भांति मिल ही जाएगी। भक्ति प्राप्त हो गई तो आगे बढ़कर भगवान से मिलाने का कार्य अब उसका। दशरथ ने राम को चाहा, राम मिल गए, पर सीता के आने पर सीता के हो गए और दशरथ से छूट गए।
दशरथ का प्रेम भक्ति से मोह में परिवर्तित हो गया था। दशरथ से भगवान और भक्ति दोनों छूट गए और दशरथ के प्राण भी। पर सीता जब राम से बिछड़ी तो और शक्तिशाली और धैर्यवती हो गई और अपने प्राणों को साधे बैठी रही। उसी विछोह को कारण और साधन बनाकर अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। सीताराम को उनके भी पास ले गई जिनके पास भक्ति जैसा गुण था ही नहीं, जो नितांत भोगी प्रवृत्ति के थे। नेता का कार्य है वो सबका भला करने के लिए आगे आए, चाहे वो उसके अनुयायी हो या विरोधी। केवल प्रशंसकों का कल्याण करने वाला नेतृत्व के लायक नहीं, चाटुकार प्रेमी कहलाता है। सीता सबके उद्धार के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश करने को तैयार है। सीता अपनी मुक्ति, अपना उद्धार नहीं करवा रही, बल्कि संपूर्ण निशाचर जाति, संपूर्ण शोषित स्त्री जाति का उद्धार करवा रही है। राम राज्य की स्थापना के पश्चात भी वो अकेली वाल्मीकि आश्रम में प्रसव करती है, अपने जुड़वा पुत्रों का लालन पालन पोषण करती है, वन में शिक्षा दीक्षा के द्वारा ऐसे राजकुमार तैयार करती है जो कौशल देश के भावी उत्तराधिकारी हैं। सीता का ये चरित्र संपूर्ण स्त्री जाति में चेतना, जागरूकता, सामर्थ्य और शक्ति का संचार करता है। सीता नेतृत्व की ऐसी धारा है जो आज तक भारतीय नारी को शक्ति और प्रेरणा दे रही है। अंत में कहना चाहूंगी कि सीता ने वन में वाल्मीकि आश्रम में निवास कर राम राज्य की सार्थकता को भी सिद्ध किया। राम राज्य में समाज के सबसे अंदरूनी छोर तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि वहां भी रहकर अकेली स्त्री अपने बच्चों का लालन पालन कर उन्हें योग्य बना सकती थी। ऐसा योग्य कि वे आगे चलकर सूर्यवंश के सम्राट के पद को भी संभाल सके। यही सीता राम राज्य से पहले पति और देवर के तनिक देर दूर होने भर से हर ली गई। वहीं राम राज्य में उसने 12 वर्ष तक सुरक्षित जीवन यापन किया। भले ही राम राजा थे, राज्य राम का था, पर उसकी निर्मात्री सीता थी और सफलतम उदाहरण भी सीता। सीता ऐसी नेत्री है जो अत्यंत विशेष इसलिए है क्योंकि उसने अत्यंत साधारण जीवन शैली को चुना, अपनाया और जिया। नेतृत्व का यह गुण सीता का ही चरित्र संसार के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेत्री का अर्थ है आगे रहने वाली, और हमारे मुख में भी सिया सदा राम के पहले आई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मिता जी। बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे कविता सिंह जी को, जिनका विषय है समुद्र मंथन। कविता सिंह जी अपना नंबर बताइए कविता जी प्लीज। रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमको नहीं मालूम है। आए मालूम नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? ढूंढ के बताइएगा 221 जी। 221। ओके, थैंक यू। शुरू करें? जी हाँ। सबको मेरा नमस्कार। परम आदरणीय विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। मैं अपना शोध पत्र समुद्र मंथन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण पौराणिक घटना समुद्र मंथन की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। समुद्र मंथन का शाब्दिक अर्थ सागर को मथना है। मंथन शब्द गहन भौतिक तथा वैचारिक प्रक्रिया है जो हर समय कठिन समस्याओं के समाधान के खोज की एक प्रक्रिया को कहा जाता है। आज भी जब जब विश्व किसी देश, समाज, किसी परिवार या व्यक्ति के जीवन में कोई कठिन समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए मंथन की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, देवता और असुर ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने के लिए गए तो भगवान विष्णु ने समुद्र सुझाव दिया कि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता प्रदान करेगा। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन एक ऐसी समस्या के समाधान हेतु किया गया जो महर्षि दुर्वासा के देवताओं को श्राप के कारण उत्पन्न हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी। इंद्र ने वह माला अनजाने में अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। दिव्य फूल का स्पर्श पाकर ऐरावत चंचल हो गया और माला भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका राज्य चला जाएगा और वे श्रीहीन हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि के
श्राप के कारण देवताओं पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए और देवराज इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा। सभी देवता श्रीहीन हो गए और वे त्रिदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार दूसरी मान्यता यह है कि समुद्र के मंथन का कारण लक्ष्मी की खोज थी। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण की बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस समय देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई थी। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। पृथ्वी को बसाने के लिए उन सारी वस्तुओं की जरूरत थी जो क्षीर सागर में छुपी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वे समुद्र का मंथन करवाएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवता गण तैयार थे और ना ही वे उसे अकेले कर पाने में समर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने के कारण पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि लक्ष्मी वापस आ जाए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री का लाभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन सतयुग के समय हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन चाक्षुष मनवंतर में सावन के महीने में हुआ। मान्यता है कि इस मंथन से अमृत निकला था, जिसके कारण देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। अब ये प्रश्न उठता है कि क्षीर सागर में ही मंथन क्यों हुआ था? ये क्षीर सागर है क्या? पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षीर सागर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्थान है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग से ही क्षीर सागर का निर्माण हुआ था। क्षीर सागर को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये भी मान्यता है कि यही मानसरोवर है और यही हिंद महासागर भी है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में ही विराजमान रहते हैं। उनके साथ देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर में विराजमान रहती हैं। यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान शेषनाग ही पृथ्वी का भार संभालते हैं और क्षीर सागर का मतलब दूध से भरा हुआ सागर है। समुद्र का मंथन करने के लिए एक मजबूत रस्सी और मथाने की आवश्यकता थी। मथाने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया और शक्तिशाली सांप वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, जिसे भगवान के कूर्म अवतार के रूप में जाना जाता है। मंदराचल पर्वत बिहार के भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में मौजूद था, जिसे समुद्र को मथने के लिए मथानी बनाया गया था। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को आज्ञा दी कि वे सुदर्शन चक्र को लेकर जाएं और मंदराचल पर्वत को काटकर उस पुष्पक से बांधकर समुद्र के किनारे लेकर आए। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मथने के लिए लाया गया। अब देवता और दानवों में ये झगड़ा होने लगा कि कौन सांप का मुंह पकड़ेगा और कौन पूंछ पकड़ेगा। उसी समय वहां नारद पहुंच गए और उन्होंने दानवों को समझाया कि जो श्रेष्ठ होता है वो मुंह की तरफ होता है, तो दानव मुंह की तरफ रहने को तैयार हो गए। जब ये बात दानवों के गुरु शुक्राचार्य को पता चली तो वे नाराज हो गए कि वासुकी के मुंह से आग निकलेगा, जिससे तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। अब देवताओं और दानवों ने मंथन शुरू किया। जैसे जैसे मंथन करते गए समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकलती गई। सबसे पहले कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कीमती रत्न और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। तभी समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और राक्षस बहुत ही चिंतित हो गए और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने असीम करुणा दिखाते हुए और ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी ली और सारा विष खुद पी गए। विष पीने से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। समुद्र मंथन में एक के बाद एक 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, भगवान धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का अर्थ है अमरता। भारतीय ग्रंथों में अमृत का महत्व अमरत्व प्रदान करने वाला रसायन है। भगवान का मोहिनी अवतार, यह अवतार एकमात्र भगवान का स्त्री अवतार है। इसमें उन्होंने ऐसी स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो सबको मोहित कर ले। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों को सागर से अमृत मिला, तब देवताओं को यह डर था कि दानव अमृत पीकर
अमर न हो जाए। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि ऐसा होने से रोके। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को मोहित कर अमर होने से रोका। मंथन के दौरान अमृत से भरा हुआ कुंभ प्रकट हुआ। इस अमृत कुंभ को पाने के लिए देवता और असुरों में 12 दिन तक लड़ाई चली। उस लड़ाई और खींचातानी के दौरान कुंभ से अमृत की 4 बूंदें अलग अलग 4 जगहों पर गिर गईं। वो 4 जगह आज के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। इन 4 जगहों पर हर 12 साल बाद बारी बारी से कुंभ का आयोजन किया जाता है और लोग यहाँ की पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अमृत देवताओं के बीच में बांट दिया, जिससे पीकर देवता शक्तिशाली हो गए और अमर हो गए। राक्षस खाली हाथ रह गए। पर जब विष्णु ने देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो देवताओं के पंक्ति में राहु नाम का राक्षस छुप कर बैठ गया था और अमृत पी लिया था, जिसे सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। उन्होंने विष्णु से शिकायत की और कि ये राहु जो है ये असुर है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन उसका सर धड़ से तो अलग हो गया पर अमर हो गया, और क्योंकि वह अमृत पी चुका था। और वह केतु कहलाया। आज भी सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगते हैं। राहु केतु को 2 छाया ग्रहों के रूप में माना जाता है। रामायण के बाल कांड सर्ग 45 में महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को विशाल नामक नगर में पहुंचने पर दुधिया सागर मंथन की कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि कैसे हलाहल विष, घातक विष और अमृत समुद्र मंथन से निकले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिव ने विष को अपने अंदर समाहित किया और कैसे विष्णु ने कूर्म के रूप में अपने अवतार में मंथन में मदद की। विश्वामित्र ने बताया कि हे राम, कृत युग के पूर्व काल में दीति के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र, पराक्रम से युक्त पुण्यात्मा तथा धर्मात्मा दोनों ही महान प्राणी विचार करने लगे कि हम बुढ़ापे, बीमारी से कैसे तथा इसी प्रकार मृत्यु के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। और जब उन्होंने विचार किया तो उन्हें विचार आया कि हमें क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत प्राप्त करना चाहिए। क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चित करके उन पर अपार पराक्रमी प्राणियों ने 1000 सिर वाले सर्पराज वासुकी को रस्सी तथा मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर मंथन आरंभ किया। 1000 वर्ष बीत जाने पर रस्सी के रूप में काम करने वाले वासुकी नाग ने भयंकर विष उगलना शुरू किया तथा अपने विष दंतों को चट्टानों से काटना आरंभ कर दिया। इससे अग्नि के समान बहुत अधिक विष निकला, जिससे देवता, असुर और मनुष्य सभी संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तब घबरा कर पराक्रमी देवता शंकर के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने हमें बचाओ बचाओ का कर प्रार्थना करने लगे। देवताओं का यह विक्षुब्ध दृश्य देखकर विष्णु के वचन सुनकर शिव जी ने उस घातक हलाहल विष को अमृत के समान पी लिया। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार भी क्षीर सागर मंथन के लिए ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जब देवताओं ने पुनः मंथन प्रारंभ किया तो वह श्रेष्ठ पर्वत अधोलोक में धंस गया। तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर विष्णु कच्छप का रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर समुद्र में खड़े हो गए और हाथ से उस पर्वत की चोटी को पकड़कर देवताओं के बीच में स्थित होकर समुद्र का मंथन करना शुरू किया। 1000 वर्ष तक मथने के पश्चात आयुर्वेद के अवतार परम धर्मात्मा धन्वंतरी नामक एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिनके हाथ में दंड और कमंडल था। अतः समुद्र मंथन की क्रिया हमें सिखलाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग, दृढ़ता, निस्वार्थ महत्वपूर्ण है और समस्या चाहे जितनी भी कठिन हो, उसके समाधान का रास्ता अवश्य निकलता है। समुद्र मंथन का संदेश जीवन प्रबंधन के सूत्र का अनुपम उदाहरण है। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास समुद्र मंथन के बारे में, पर समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद कविता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो किसी वक्ता से तो आपका स्वागत है। कोई प्रश्न नहीं है? तो ये सेशन अभी यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम शहीद भवन, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, ओम भाई साहब और शिव भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।